محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے اللہ کے ذکر کے اور باتیں زیادہ مت کیا کرو، کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بہت باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ خدا تعالیٰ سے دور وہ شخص ہی ہیں جس کا دل سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر. ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے بھیم گل شہر کو اسمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کے لیے میونسپل عہدیداران کو دی ہدایت. ریاستی وزیر نظم نقش KTR کی ہدایت پر ہر اتوار کو 10:10 پروگرام کا ZP چیئرمین وٹھل راؤ نے کیا انعقاد اور کی اپنے اطراف و اکناف کی صفائی. TRS کے مرحوم قائدین کے افراد خاندان کو وعدے کے مطابق TRS انشورنس کی رقم جکل رکن اسمبلی ہنومن شنڈے نے کی حوالے. منڈل میں کئی ترقی یافتہ کاموں کا کیا افتتاح. مجلسی قائدین نے شہر کے اپنے اپنے علاقوں میں ترقی یافتہ کاموں کو شروعات کرنے اور دیگر مسائل کے تعلق سے حیدرآباد اعلیٰ پارٹی قائدین کے ساتھ اجلاس عمل میں لاتے ہوئے کیا تبادلہ خیال. شہر نظام آباد رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے آج ترقی یافتہ کاموں کا سنگ بنیاد رکھا. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے ترقی یافتہ کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے عہدیداران کو ہدایت دی. ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے حیدرآباد میں واقع اپنے دفتر میں بھیمگل میونسپل چیئرپرسن ملیلا راجسری لکشمن، کمشنر گوپو گنگادھر، ٹاؤن پلاننگ عہدیدار پروین، میونسپل AE رگھو سے اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ شہر میں جاری BT روڈ، ڈرینیج، CC روڈ و ترقی یافتہ کاموں کو فی الفور مکمل کرنے کے ساتھ LED لائٹ کا انتظام حال ہی میں قیام عمل میں لائے گئے. بھیمگل کو خوبصورت شہر میں تبدیل کرنے کے لیے ہر ماہ 15 لاکھ بھیمگل میونسپلٹی کو فراہم کرتے ہوئے اب تک 25 کروڑ روپے کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے 19 کروڑ روپے کے مصارف سے ترقی یافتہ کاموں کو منظور کرنے کا انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ اب تک ٹینڈر کا مرحلے وار فوری مکمل کرنے کے ساتھ ہی ڈرینیج، CC روڈ، BT روڈ کی زیر تعمیر کام کو صاف و شفاف طریقے سے جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے عہدیداران کو ہدایت دی. بستی دواخانوں کا آغاز کرنے اور زیر التوا ترقیاتی کاموں کو انجام دینے ضلع کلکٹر و رکن اسمبلی گنیش گپتا سے نمائندگی. ڈپٹی میئر ادریس خان، فلور لیڈر شکیل احمد کی قیادت میں مجلسی کارپوریٹرز کی رکن اسمبلی احمد بلالہ سے نمائندگی. جناب احمد بن عبداللہ بلالہ رکن اسمبلی مجلس حلقے ملک پیٹ و انچارج ضلع مجلس تنظیمی امور نظام آباد نے ضلع کے ریئل اسٹیٹ کے تاجرین کے ایک وفد کو تیقن دیا ہے کہ شہر کے صنعتی علاقوں کی چاروں سمت تقسیم اور لے آؤٹ کے بغیر رجسٹریشن پر عائد امتناع کے معاملے سے وہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ اور جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس کو واقف کروائیں گے. انہوں نے کہا کہ 100 تا 200 گز اراضی کے لے آؤٹ اجازت حاصل کرنے، زائد چارجز میں تخفیف اور غریب و مستحق عوام کو راحت پہنچانے کے لیے سرکاری طور پر نمائندگی کی جائے گی. جناب احمد بلالہ کے حیدرآباد میں واقع آفس میں صدر ضلع مجلس اڈاک کمیٹی و سابق ڈپٹی میئر MA فہیم، صدر ٹاؤن مجلس و بلدی فلور لیڈر نظام آباد محمد شکیل احمد فاضل، ڈپٹی میئر مجلس نظام آباد محمد ادریس خان، مجلسی کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز اعجاز حسین، محمد ریاض احمد، MA غفور مقیم، مرزا افسر بیگ، محمد مستحسین، عبدالعلی عبدالسلیم، سید رفیع الدین، معتمد ٹاؤن مجلس و معاون رکن محمد شہباز کے ساتھ ریئل اسٹیٹ تاجرین کے وفد کے ہمراہ ملاقات کی تھی، جن میں مسز محمد سردار علی، محمد ناظم الدین، محمد ظہیر الدین، عطا اللہ خان، محمد منیر الدین، MA ابرار اور دوسرے شامل تھے. مجلسی قائدین اور ریئل اسٹیٹ کے تاجرین کے وفد نے جناب احمد بلالہ کو بتایا کہ لے آؤٹ کے بغیر رجسٹریشن پر
पर आयत इम्तिना से गरीब और मुस्तहक़ अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के गुंजान अक़लियती इलाकों में सनती यूनिट्स के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। जनाब अहमद बलाला ने वफद को बताया कि वो इस मामले को सदर मजलिस और कायद मजलिस को वाकिफ करवाएंगे। बातज़ा रुकन असम्बली मजलिस निज़ामाबाद के मजलिसी कॉर्पोरेटर्स और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए जिले में तरक्याती और तामीराती कामों के अलावा अवामी बुनियादी सहूलतों का जायजा लिया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि शहर निज़ामाबाद में 4 बस्ती दवाखानों की मंजूरी अमल में आई है, ताहम जिला इंतजामिया ने हुनूस कोई पहल नहीं की। इन्होंने शहर के गुंजान नौआबादियात सर्व इलाकों में अराजियात की निशानदही के जरिए बस्ती दवाखानों के क़याम की जरूरत पर जोर दिया, जिस पर जनाब अहमद बलाला ने जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी से फोन पर बात की और दरकार इक़दामात का मशवरा दिया। जिले कलेक्टर ने 14 सितंबर को अराजियात की निशानदही के इक़दामात का तयक़ुद दिया। अलावाजी रुकन असम्बली मजलिस ने शहर में ज़ेर इल्तिवा कामों की आजिलाना तकमील और नए कामों के आगाज के सिलसिले में रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता से फोन पर बात की, जिन्होंने इन कामों की आजिलाना तकमील और नए कामों के आगाज का यकीन दिलाया। जनाब अहमद बलाला ने ईदगाह जबल की अराजी की तनाज़े की एकसवी के मामले में भी रुकन असम्बली निज़ामाबाद रूरल बाजी रेड्डी गोवर्धन से फोन पर बात की। शहर निज़ामाबाद रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने आज पॉलिटेक्निक कॉलेज में तामीर करदा टॉयलेट का इफ्तिताह अमल में लाकर दीगर तरक्की याफ्ता कामों का संग बुनियाद रखा। शहर निज़ामाबाद रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने आज पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड और वर्जिश और वर्कर्स के लिए आने वाले अफराद की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए तामीर करदा टॉयलेट का इफ्तिताह अमल में लाकर इसके बाद ओपन जिम की तामीरी कामों के पास भूमि पूजा की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पहले मरहले के तरक्की के तहत गंगस्तान और पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में ओपन जिम की तामीर अमल में लाकर अवाम के इस्तेमाल में लाया जाएगा, लेकिन रोजाना कसी तादाद में अवाम आने की वजह से ख़वातीन के लिए एक अलहदा ओपन जिम की तामीर अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि रोजाना कसरत करते हुए शहरी अवाम अपनी सेहत की हिफाजत करे और इसी तरह शहर की आबादी को मद्देनजर रखते हुए मस्जिद टॉयलेट की तामीर अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि आज सारी दुनिया पर कोरोना वायरस का कहर जारी है, हर एक शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए कहा। इसके बाद इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से नए रेवेन्यू एक्ट की मंजूरी तारीखी फैसला करार देते हुए कहा कि तेलंगाना कानून साज असम्बली में रेवेन्यू एक्ट के बिल की वजह से किसानों और गरीब अवाम की जमीनात पर नाजायज कब्जों और बदअनवानियों को रोका जाने का इंकशाफ किया। ప్రీకాస్ట్ కావచ్చు, అదేవిధంగా కొన్ని ఫ్యాబ్రికేషన్ కావచ్చు, పక్కాగా అక్కడే కట్టడం కావచ్చు, మరి ఏదైతే ప్రభుత్వం సగటు ఏదైతే ఇచ్చిందో ఆ పాపులేషన్ ప్రకారం మేము టాయిలెట్స్ నిర్మిస్తూ ఉన్నాం। మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మరి వెంటనే టెండర్లు పిలిచేసి మరి టాయిలెట్స్ నిర్మాణం చేస్తూ ఉంది। జనరల్గా టాయిలెట్స్కి ఎమ్మెల్యే గారు ఇనాగ్రేషన్స్ పోతున్నారేంది, మేయర్ గారు పోతున్నారని ప్రజలు అనుకోవచ్చు। అది ఇంతకుముందు కూడా నేను వివరించిన ప్రజలకు అసౌకర్యంగా ఉంటుంది ఎక్కడ పోవాలన్నా, కాబట్టి ఎక్కడ పోయినా కూడా టాయిలెట్స్ అనేది ఇప్పుడు మీరు భారతదేశం దాటిన తర్వాత యూరోప్ కానీ అమెరికా కానీ పోతే మీరు వెతకాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, ప్రతి దగ్గర ఉంటాయి। ఇప్పుడు పాలిటెక్నిక్లో ఇనాగ్రేషన్ చేసినాం, పాలిటెక్నిక్లో వాకర్స్ వస్తారు, మరి పొద్దున కానీ సాయంత్రం కానీ వాకర్స్ వచ్చినప్పుడు టాయిలెట్ ఉపయోగించాలంటే ఇక్కడ లేవు, మరి ఆ సదుపాయాన్ని ఈరోజు పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్లో పెట్టినాం। ఆల్రెడీ ఓపెన్ జిమ్ ఒకటి ఇక్కడ నడుస్తూ ఉంది, కానీ అక్కడ మహిళలు చేయాలంటే కొంచెం ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణం, ఎందుకంటే ఆ మెజార్టీగా అక్కడ పురుషులు ఉంటారు। మరి ఇక్కడ డిమాండ్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ ప్రైవసీ ఉండే విధంగా पॉलिटेक्निक ग्राउंड लो ఈ రోజు ఇంకో జిమ్ ఏర్పాటు। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश्वी पाटिल, म्यूनिसिपल ओहदेदारान सागर शंकर रशीद, पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रिंसिपल राम कुमार और TRS कॉर्पोरेटर्स कायदीन ने शिरकत की। जिले निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने रियासती वजीर बल्दी नज़म KTR की हिदायत के मुताबिक आज 10:10 पर ZP दफ्तर पर पौधों को पानी सरबराह किया और इतराफ इकनाफ के माहौल को साफ किया। जिले निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने रियासती वजीर बल्दी नज़म KTR की हिदायत के मुताबिक आज सुबह 10:10 पर मौसमी अमराज और मच्छरों के जरिए लाक होने वाली अमराज को रोकने के लिए ZP चेयरमैन ने ZP दफ्तर में मौजूद पौधों को पानी डालते हुए इतराफ इकटाफ के माहौल को साफ सफाई की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वजीर बल्दी नज़म KTR की हिदायत के मुताबिक हर एक शख्स अपनी जिम्मेदारी समझकर हिदायत को सही 10:10 पर
मुतारफ करदा प्रोग्राम में शामिल होकर अपने घर के इतराफ माहौल की साफ सफाई करते हुए मौसमी अमराज और मच्छरों के जरिए फैलने वाली बीमारियों को रोकने का इंकशाफ किया। కేటీఆర్ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ప్రతి ఆదివారం 10 గంటల నుంచి 10 నిమిషాలు ఈ సీజనల్ వ్యాధుల గురించి మరి మనం ఎవరి ఇల్లు వాళ్ళు, ఎవరి ఆఫీస్ వాళ్ళు, ఎవరి పరిసరాలు వాళ్ళు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మరి మంచి కార్యక్రమం కేటీఆర్ గారు ఈ కార్యక్రమం ఇవ్వడం జరిగింది. మనకు తెలుసు వర్షాకాలం రాగానే ఈ సీజనల్ వ్యాధులు స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. జ్వరం కానీ, దగ్గు కానీ, దమ్ము కానీ, మలేరియా కానీ, డెంగీ కానీ మరి ఇటువంటి వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయి. కలరా ఈ వ్యాధులు మరి ఇప్పుడు మనకు తక్కువ ఉన్నాయి. पीर 14 सितंबर को चांद खाना काबा के ऊपर होगा। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में फल्कियाती उलूम की सोसाइटी के डायरेक्टर इंजीनियर माजिद अल ज़हरा के मुताबिक पीर 14 सितंबर को सूरज तुलू होने के चंद घंटे बाद चांद खाना काबे के ठीक ऊपर होगा। ये रवा साल 2020 में चांद के खाना काबा के ऊपर आने का चौथा मौका होगा। इंजीनियर माजिद ने बताया कि पीर की सुबह 9:33 पर 54 सेकंड पर चांद मक्का मुकर्रमा के अफक पर 8,95,840 डिग्री की ऊंचाई पर होगा। इस मौके पर चांद 13.7% रोशन होगा और सूरज से इसका फासला 3,73,958 किलोमीटर होगा। इंजीनियर माजिद के मुताबिक इस मौके पर अमली तौर पर आसान तरीके से क़िबले की सिमत का तयन किया जा सकता है। दूर दराज रहने वाले अफराद अपने मुकामात पर रहते हुए चांद को देखकर बैतुल्लाह की दुरुस्त सिमत मालूम कर सकते हैं। अलावाजी पीर को तुलू आफ्ताब से चंद घंटे कबल महीने के आखिर का चांद सियारा ज़ोहरा के साथ जुड़ी की हालत में होगा। इस शानदार मंजर को सादा आंख से देखा जा सकेगा। बच्चों के मास्क से मुतालिक WHO की ताज़ा गाइडलाइंस। आलमी इदारा सेहत WHO ने बच्चों में कोरोना वायरस की वबा से मुतालिक एहतियाती हिदायत जारी की है। आलमी इदारे ने बच्चों में मास्क के इस्तेमाल से मुतालिक दर्जाबंदी की है, जो 5 साल से कम उम्र बच्चों, 6 से 12 साल के बच्चों और 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए की गई हैं। आलमी इदारे के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी हो तो वालिदैन 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने में मदद करें। स्कूल या घर से बाहर जाते वक्त 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे मास्क पहने। कोरोना वायरस से मुतालिक 12 साल से ज़्यादा के बच्चे बड़ों की तरह एहतियात इख्तियार करें। बच्चों को खेल के मैदान में खेलते हुए मास्क नहीं पहनना चाहिए, जबकि खेल की सरगर्मियों में कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाए। स्कूल में बच्चों के लिए खेल के दौरान 1 मीटर का फासला रखा जाए। स्कूलों में साथ खेलने वाले बच्चों की तादाद में कमी की जाए। WHO के मुताबिक स्कूलों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बच्चों को हाथ साफ रखने की सहूलियात और मास्क के इस्तेमाल की तरगीब दी जाए। जिले कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे बिचकुंदा में तरक्की याफ्ता कामों का संग बुनियाद रखकर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन के इस्तीफादा कुनिनगान में CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। जिले कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे आज मिशन भगीरथा भवन की तामीर के लिए 50 लाख रुपए लागती कामों का आगाज अमल में लाकर इसके बाद इस्तीफादा कुनिनगान में CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाने के बाद मंडल के मुकाम पर मिशन भगीरथा भवन का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत कोविड-19 दौर में भी हुकूमत की जानिब से मुनफरिद स्कीमात के तहत अवाम को सहूलियात पहुँचाए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPP अशोक, ZPTC भारती राजू, सरपंच, DCCB डायरेक्टर राम पटेल व दीगर ने शिरकत की। फाइनल ईयर तलबा को इन्हीं के कॉलेजेस में इम्तिहान लिखने की सहूलत। कोरोना बहरान के पेश नज़र महकमे तालीमात ने अहम फैसला किया है। अंडर ग्रेजुएट, UG, पोस्ट ग्रेजुएट, PG फाइनल ईयर तलबा को इनके कॉलेजेस में इम्तहानात तहरीर करने की सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। ताहम ये सहूलियात सिर्फ जारिया साल रहेगी। 15 सितंबर से तमाम यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर इम्तहानात का आगाज होगा। कोरोना कहर को देखते हुए हुकूमत ने पहले ही 10वीं के तलबा प्रोमोट कर दिया। इसी तरह इंटर फेल तलबा को सप्लीमेंट्री के बगैर प्रोमोट कर दिया। डिग्री व फाइनल
फाइनल ईयर तलबा को भी बगैर इम्तिहानात प्रोमोट करने का तलबा तंजीमों से मुतालबा किया जा रहा है। एहतिजाज के साथ अदलिया का दरवाजा खटखटाया गया है। तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद महकमे तालीम के यूजी और पीजी फाइनल ईयर इम्तिहानात इन्हीं के कॉलेजेस में मुनाकिद करने का फैसला किया है। अरकान असम्बली व कौंसिल को दोबारा कोरोना टेस्ट की हिदायत, निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही ऐवान आए, अमला व मीडिया के लिए भी शर्त। असेंबली और काउंसिल के अरकान को दोबारा कोरोना टेस्ट और नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ ऐवानों को पहुंचने की हिदायत दी गई है। असेंबली सेशन के लिए वसी तर एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। स्पीकर असेंबली पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और सदर नशीन काउंसिल जी सुगेंदर रेड्डी ने दोनों ऐवानों के अरकान के अलावा ओहदेदारों, पुलिस और मीडिया को हिदायत दी कि वो इतवार की शाम तक दोबारा कोरोना टेस्ट करा ले और निगेटिव रिपोर्ट्स के साथ ही असेंबली और काउंसिल को पहुंचे। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव है तो वो घरों में आराम को तरजीह दे। वाज़ेह रहे कि 7 सितंबर से मानसून सेशन का आगाज हुआ जो 28 सितंबर तक जारी रहेगा। असेंबली व काउंसिल इजलास से कबल तमाम अरकान व ओहदेदारों का टेस्ट किया गया था। ताहम हफ्ता और इतवार को तातीलात थी। पीर से दोबारा दोनों ऐवानों का आगाज होने वाला है, जिसके पेश नज़र असेंबली और काउंसिल को हाजिर होने वालों को दोबारा कोरोना टेस्ट कराने के अहकाम जारी हुए, जिसकी पाबंदी करना सबके लिए लाजमी है। दुबई और शारजा के लिए फ्लाइट्स का आगाज। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद से दुबई और शारजा के लिए फ्लाइट्स का आगाज हो चुका है। एमिरेट्स फ्लाइट्स हैदराबाद से शारजा के लिए मंगल, जुमेरात और इतवार को परवाज करेंगे और दुबई फ्लाइट हैदराबाद से दुबई के लिए पीर, चाशुम्बा और हफ्ते को रवाना होगी और एयर अरबिया फ्लाइट शारजा के लिए चाशुम्बा, जुम्मा और इतवार को हैदराबाद एयरपोर्ट से रवाना होगी। तमाम मुसाफिरीन जिनकी शमशाबाद एयरपोर्ट पर आमोदरफ्त होगी, इन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल पर अमल करना लाजमी है। इन्हें सैनिटाइजर किया जाएगा और मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। इसके अलावा मुसाफिरीन की मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। तमाम मुसाफिरीन को एहतियाती इक़दाम के साथ आना और हिफाजती इंतजाम के साथ दीगर ममालिक के लिए रवाना किया जाएगा। कोविड-19 की वजह से एयरपोर्ट पर तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं और मुसाफिरीन को भी ताउन करने की जरूरत है। तेलंगाना में कोरोना के 2278 नए पॉजिटिव केसेस, 10 अमवात। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2278 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 10 अमवात रिकॉर्ड हुए हैं। इसी तरह अब तक रियासत में मरने वालों की तादाद 950 और जुमला कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,54,880 तक जा पहुंची है। रियासत में जुमा को जुमला 2,458 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए हैं और अब तक जुमला सेहतियाब अफराद की तादाद 1,21,925 हो गई है और सेहतियाबी का तनासुब 78.7% हो गया है, जबकि मुल्क भर में सेहतियाबी का तनासुब 77.75% है। जुमेरात और जुम्मा के दरमियान महकमे सेहत के हकाम की जानिब से जुमला 62,234 मुआयने किए गए, जिनमें 2027 नमूनों की रिपोर्ट आनी बाकी है। रियासत में जुमला 32,005 एक्टिव कोरोना केस मौजूद है, जिनका इलाज किया जा रहा है। एक्टिव केसों में जुमला 25,050 अफराद होम आइसोलेशन में है, जबकि 6,955 अफराद का दवाखानों में इलाज चल रहा है। जो नए केस रिपोर्ट हुए, इनमें 331 GHMC से है, आदिलाबाद से 25, भोदादरी कोत्तागुड़म से 80, जगतियाल से 56, जनगांव से 31, जयशंकर भोपालपल्ली से 27, गदवाल से 21, कामारेड्डी से 78, करीमनगर से 121, खम्भम से 98, कमरम भीम से 26, महबूब नगर से 34, महबूबाबाद से 76, मंचियाल से 43, मेदक से 24, मलकाजगिरी से 150, मलक से 12, नागर कर्नूल से 34, नलगोंडा से 126, नारायणपेट से 22, निर्मल से 23, निजामाबाद से 49, पेद्दापल्ली से 48, राजौना सिलसिला से 54, रंगारेड्डी से 184, संगारेड्डी से 62, सिद्दीपेट से 89, सूर्यापेट से 82, विकाराबाद से 23, वनपर्ती से 42, वरंगल रूरल से 28, वरंगल अर्बन से 91 और यादाद्री भोनेंगर से 49 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जब तक दवाई नहीं तब तक लापरवाही नहीं, मोदी कोविड-19 पर काबू पाने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी नारे के साथ वजीर आजम का अवाम से खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अवाम से हर दर्जे एहतियात करने अपनी अपील का इयादा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के लिए एक मौसर दवा की तैयारी तक इस वायरस के ताल्लुक से कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। अवाम को हर तरह से मोहतात रहना होगा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढलाई, लापरवाही नहीं का नारा दिया
प्रधानमंत्री योजना के तहत मध्य प्रदेश के 10 इलाकों में 1.75 लाख मकानात की तामीर के बाद वर्चुअल इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, ZC करेला, फिनिसिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल के बमशमूल 7 हिंदुस्तानी फार्मा कंपनियों ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने का काम शुरू किया है। भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर वैक्सीन दवा तैयार की है, जिसके आजमाइशी मरहले शुरू हो चुके हैं। हिंदुस्तान भर के 12 इदारों में इस वैक्सीन का तजुर्बा किया जा रहा है। जानवरों में इस वैक्सीन की आजमाइश की जा रही है। बोधन में कोरोना के टेस्टों का सिलसिला जारी। हल्का असम्बली बोधन में रोजाना मर्ज कोविड-19 के मुश्तबा मरीजों की जांच के काम जारी है। जांच के दौरान जिन अफराद की रिपोर्ट मुस्बित पाए जाने पर इन्हें अपने घरों में ही खरतीनिया में चले जाने की डॉक्टर्स हिदायत दे रहे हैं और इन्हें आइसोलेशन किट्स पेश किए जा रहे हैं। आज रकासपेट यूपी हेल्थ सेंटर पर जुमला 19 अफराद की जाँच की गई, जिनमें से 3 अफराद की रिपोर्ट मुस्बित पाई गई और पानगली सेंटर पर 35 में से 3 अफराद पॉजिटिव पाए गए। इनके अलावा वीराना गोट्टा तांडे में 35 मुश्तबा अफराद की जांच की गई, जहां तमाम अफराद की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। खुसूसी अदालत को पुलिस का अदम ताउन, जज ने 50 पुलिस स्टेशन के खिलाफ डीजीपी से शिकायत की। खुसूसी अदालत के अवामी मुंतखबा नुमाइंदों की मुकदमात में राजा सिंह सरफहरिस्त। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्रिमिनल मुकदमात में माकूज मौजूदा व साबिक अरकान असम्बली अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ सख्त नोट लेने के बाद तेलंगाना में जिन अवामी मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात दर्ज है, इनमें खलबली मच गई है। रियासत की खुसूसी अदालत ने 50 पुलिस स्टेशन के ताउन हासिल न होने की डीजीपी से शिकायत की है। चीफ मिनिस्टर के बमशमूल 77 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज है। खुसूसी अदालत के मुकदमात में बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह सरफहरिस्त से रियासत में अरकान असम्बली अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ खुसूसी अदालत में 118 क्रिमिनल केसेस ज़ेर इल्तिवा है, जिनमें बाज़ 2007 के केसेस भी शामिल है। तेलंगाना तहरीक के दौरान चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ 4 क्रिमिनल मुकदमात दर्ज है। जिले निजामाबाद में कोरोना के मजीद 208 केस। निजामाबाद जिले में मजीद 208 नए कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। जिले तिब व सेहत अहदेदारों की इत्तला के मुताबिक 208 नए मुस्बित केसों से जिले में जुमला मुस्बित केसों की तादाद 8,888 को जा पहुंची है, जिनमें 5,006 फॉल केस शामिल है। ताहाल इलाज मौलजी के बाद 3,750 अफराद डिस्चार्ज हुए हैं। अलाहाबादी जिले में ताहाल 132 अफराद की कोरोना से मौत वाक़ होने का अहदेदारों ने इजहार किया है। अहदेदारों ने जिले में दिन ब दिन कोरोना मुस्बित केसों में इजाफे के तनाज़ुर में एहतियाती तदाबीर क़वायद को बहर सूरत इख्तियार करने, इमरजेंसी के वक्त ही बाहर निकलने और मास्क का बहर सूरत इस्तेमाल, जिस्मानी फासला बनाए रखने का मशवरा दिया। शहर निजामाबाद रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने नए रेवेन्यू एक्ट की मंजूरी को तारीखी फैसला करार दिया। शहर निजामाबाद रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना कानून साज असम्बली में रेवेन्यू एक्ट बिल को पेश करते हुए तेलंगाना की तारीख में अपना नाम दर्ज किया है। रियासत में आज किसान और गरीब अवाम इस बिल के पास होने से काफ़ी खुश है। इन्होंने कहा कि हर शहरी जल्द ही एक सरकारी दफ्तर से दूसरे दफ्तर में चलने के बजाय आने वाले धरनी पोर्टल के जरिए क्लच ऑफ बटन पर ज़रई और गैर ज़रई दोनों जायदादें मुंतकिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों पहले ज़मीन की खरीदी करने के बाद पहले रजिस्ट्रेशन, इसके बाद भी ज़मीन दूसरे को मुंतकिल करने के लिए तहसीलदार को दरख्वास्त देकर कई बार रेवेन्यू महकमे के इतराफ चक्कर लगाने पड़ते, मगर अब नए रेवेन्यू एक्ट के तहत ज़मीन की रजिस्ट्रेशन करने के बाद फौरी तौर पर जायदाद की तब्दीली अमल में आने का इंकशाफ किया। वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा अंजाम दी। वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव यादाद्री पहुंचने पर मंदिर कमेटी के अफराद की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इसके बाद इन्होंने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की जियारत की। खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद मनादिर के कामों का मुआयना किया। इसके बाद तरक्की के कामों के ताल्लुक से मनादिर के अहदेदारान से इजलास मुनाकिद करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ रियासती वज़ीरा जगदीश्वर रेड्डी, वेब गोंगड़ी सुनीता, MP संतोष कुमार व दीगर कायदीन ने शिरकत की। सारा फाउंडेशन निजामाबाद के माजूर अफराद को बस और ट्रेन पास की मुफ्त इमदाद, आरमूर के अवाम से इस्तिफादे की अपील।
जमात इस्लामी हिंद आर्मूर की रहनुमाई व ताउन से सहारा फाउंडेशन निजामाबाद जनाब साबिर हुसैन साहब फाउंडर ने आर्मूर के एक जहनी व जिस्मानी माजूर लड़के को मुफ्त बस और ट्रेन पास हासिल करने में इमदाद फराहम की। इस मौके पर साबिर हुसैन साहब ने अपनी सरगर्मियां पेश की और बताया कि जहनी व जिस्मानी माजूर अफराद की इमदाद करना, इनकी रहनुमाई करना और पास बनवा कर देना अहम काम है। वबा के दौरान मसाजिद का मुफ्त सैनिटाइजेशन करवाया गया और इसी तरह डायलिसिस के मरीजों को भी पास मुफ्त में बनवा कर दिया जा रहा है। क्योंकि मेरा ताल्लुक आर्मूर से है और वालिद जनाब जहूरुल हुसैन मरहूम जमात इस्लामी आर्मूर से वाबस्ता रहकर मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दिए, तमाम अफराद इससे फ़ायदा उठाए और माजूर अफराद की मदद करें। जनाब अब्दुल जब्बार साहब ने इस मौके पर सहारा फाउंडेशन की सराहना की और ऐसे खिदमत खल्क के कामों को आगे बढ़ाने का मशवरा दिया। जनाब असलम बिन मोहसिन साहब ने आर्मूर के अवाम से इस्तिफादा करने का और फाउंडेशन की खिदमत को आगे बढ़ाने पर जोर दिया और ताउन की पेशकश की। जनाब शेख आरिफुद्दीन साहब ने सहारा फाउंडेशन की सरगर्मियों का तारुफ करवाया और मेहमानों की मौजूदगी में बस पास और ट्रेन पास हवाले किया। जनाब अब्दुल रहमान खालिद साहब ने इजहार तशक्कुर किया। मोहम्मद साजिद मोहम्मद रफ़ी साहब ने इंतजाम किया। सारा फाउंडेशन की जानिब से जो मौजूद बच्चे हैं उनको जो है फ्री बस पास और ट्रेन पास दिया जा रहा है। मैं साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि हम जो भी बच्चों को यहाँ से भेजें, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके वैसे लोगों की आप मदद करें। अल्लाह ताला आपको खैर अता फरमाए और आपके वालिदैन को अल्लाह क्योंकि जहूरुल हसन साहब हमारे डिपार्टमेंट के भी साजिद हैं, दूसरी बात की जमात के भी साजिद हैं। उनके खिदमत थोड़ी देर बहुत उनको याद है कि वो आज हमारे आर्मूर में सारा फाउंडेशन की जानिब से माजूर बच्चे हैं उनके लिए बस पास और ट्रेन की फ्री सहूलत और इमदाद के लिए साबिर हुसैन साहब आए हुए हैं। आर्मूर में ये मुफ्ती साहब मुझे रब्ता की निजामाबाद में इनका काम चल रहा है। अलहमदिल्ला जो भी ये लड़का है रफ़ी साहब का उनको बस पास और फ्री ट्रेन पास बना दीजिए। ऐसे ही आर्मूर में जो भी अफराद अपना बस पास बनाना चाह रहे हैं फ्री ट्रेन पास। निजामाबाद के खदीम फुलांग में मौजूद खैराबाद मस्जिद को आबाद करने के लिए साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद खैसर की जानिब से कोशिश, अहले खैर हजरात आगे आने की अपील। निजामाबाद इलाके खदीम फुलांग में एक कदीम मस्जिद जो गुज़िश्ता कई सालों से वीरान हो चुकी है, इसे आबाद करने के लिए साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद खैसर की जानिब से कोशिशें जारी हैं। आज इन्होंने एक इंजीनियर के साथ इस मस्जिद का जायजा लिया और मुकामी अवाम से बातचीत की और इसी तरह इन्होंने अवाम बिलखुसूस अहले खैर हज़रात से अपील की कि वो तामीर के लिए आगे आते हुए इस मस्जिद को फिर से आबाद करें। कई दिन पहले मैं यहाँ पर आया था, आके यहाँ का जायज़ा लिया था। देखने के बाद हालत बहुत ख़राब थी। फिर आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर्स को साथ लेके आया यहाँ पर और महल्ले के बुज़ुर्ग लोग, बड़े लोग और पड़ोसी वही साहब और हमारे गंगाधर अन्ना, तो यहाँ के ख़वातीन भी ये लोग बोलते सो खुले तौर पे बता रहे कि भाई आप कंस्ट्रक्शन करिए इसको किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का घर क़ायम करेंगे तो हमारे भी घर क़ायम होंगे, हमारे घर में बोलते उसमें बरकत आएंगी। और ये चीज़ को इंशाअल्लाह मैं तमाम जितने भी बोलते सो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, निज़ामाबाद के या बैरून के कहीं के भी लोग हैं, आप लोग बोलते सो मस्जिद के लिए ताउन करिए, आइए आके देखिए, क्योंकि छोटा काम नहीं है। अगर आप अल्लाह के घर को क़ायम करेंगे तो अल्लाह आप लोगों के घर क़ायम करेंगे। ये वाज़ेह है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ఇక దానివలన ఇక దేవుని వలన మనకు ఒక మా పక్కకు వాళ్ళ జగల దేవుని జగల దేవుంది చేసేసుకుంటే పక్కోళ్ళకు ఇది అయిపోతున్నాయి, అది బాగా పాతది, ఏదో కొత్తది ఏదో రౌతు పడ్డది ఏదో మేము చేయించుకున్నాము చేసినామంటే అది నడుస్తుంది. ఇప్పుడు కైసర్ భాయ్ కూడా జర రావడం వలన కొంచెం ఇది అంతా మేము చేస్తాము, అది చేస్తాము, ఇది సాఫ్ చేపిస్తాము, ఇదంతా చేస్తామంటే ఏమన్నా మాకు తక్లీఫ్ బాగా అంటే ఇక చూస్తే అసలు అక్కడ నిల్చుండబుద్ధి కాదు, అంటే వెళ్ళిపోవడమే. ఇక ఎందరికి చెప్పినా అని మరి ఈడ కట్టుకునే బదులు ఎటన్నా వెళ్ళిపోయారు కదా మరి అవన్నిటికంటే అన్న ప్రశ్న చెప్పిండ్రు. अल्लाह करम से खैसर साहब आए हमारे महल्ले में। ये बहुत पुरानी मस्जिद है, 300-400-500 साल भी हो सकते। पहली दफ़ा हर कोई ये तो बोले थे कि हम कुछ करेंगे, इसको कोशिश करेंगे, मगर अभी तक कोई कुछ नहीं करे थे। पहली दफ़ा ये खैसर साहब हमारे आए हैं और अल्लाह के करम से जो है सो कुछ थोड़ी सी हलचल तो हुई। इंशाअल्लाह मेरे को उम्मीद है इसके आगे जो है सो कुछ बात हो सकेंगी। मैप वगैरह पूरे हमारे पास है, मगर अब जितना हिस्सा है उतने को बचाने के लिए कोशिश कर रहे। अब इसको उतार अगर लिए तो बहुत अच्छी बात रहती।
साउथ सेंट्रल रेलवे ओहदेदार ने हैदराबाद परभनी ट्रेन बरोज़ हफ्ते से आगाज अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। साउथ सेंट्रल रेलवे ओहदेदार ने अहकामात जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से 6 माह से मनसूख करदा हैदराबाद परभनी ट्रेन का बरोज़ हफ्ते की रात से आगाज अमल में लाने का इंकशाफ करते हुए कहा कि ये ट्रेन सिकंदराबाद, कामारेड्डी, निजामाबाद, नांदेड़, पूर्णा, परभनी स्टेशन में ही इसका स्टॉप रहेगा। कोरोना के खौफ से 6 माह से जायद ट्रेन के सफर पर रोक लगाने से कई कारोबारी अफराद के कारोबार ठप हो गए, जिसकी वजह से इसका सीधा असर इनकी जिंदगी पर पड़ने से जिंदगी का निजाम दरहम बरहम हो गया है। हैदराबाद परभनी स्पेशल ट्रेन के आगाज करने पर कई कारोबारी अफराद को रोजगार मिलेगा और इनकी मौजूदगी में खुशहाली आने की उम्मीद की जा रही है। अमित शाह एक बार फिर हॉस्पिटल में शरीक। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को खराबी सेहत के बायस एक बार फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में शरीक करवाया गया है। एम्स के जराये के मुताबिक अमित शाह को हफ्ते की रात 11 बजे हॉस्पिटल से रुजू किया गया। वाज़ेह है कि अमित शाह को 2 अगस्त को कोरोना वायरस से मुतासिर होने पर गुरुग्राम में वाक़े मेदांता हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। सेहतयाब होने के बाद इन्हें 14 अगस्त को डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन वायरस के बाद होने वाली तकालीफ की वजह से 18 अगस्त को वो दोबारा एम्स में शरीक हुए थे, जिसके बाद इन्हें 31 अगस्त को घर जाने की इजाज़त दे दी गई थी। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने भीमगल शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए म्यूनिसिपल अहदेदारान को दी हिदायत। रियासती वजीर नज़्म नक्श KTR की हिदायत पर हर इतवार को 10:10 प्रोग्राम का ZP चेयरमैन विठल राव ने किया इनेकाद और की अपने ट्रैफिक नाफ की सफाई। TRS के मरहूम कायदीन के अफराद खानदान को वादे के मुताबिक TRS इंश्योरेंस की रकम जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने की हवाले। मंडल में कई तरक्की याफ्ता कामों का किया इफ्तिताह। मजलिसी कायदीन ने शहर के अपने अपने इलाकों में तरक्की याफ्ता कामों को शुरुआत करने और दीगर मसाइल के ताल्लुक से हैदराबाद आला पार्टी कायदीन के साथ इजलास अमल में लाते हुए किया तबादले ख्याल। शहर निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने आज तरक्की याफ्ता कामों का संग बुनियाद रखा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।